members, I have received notices of adjournment motion from some members of different issues. So I have disallowed all the notices of adjournment motion. Papers to be laid on the table. Shri Bandaru Dattatreya ji. Madam Speaker, I rise to lay the papers on the table of the House mentioned against my name at serial number 2 in today's list of business. Shri Mahesh Sharma, item number 3. With your permission, on behalf of my colleague Shri Dharmendra Pradhan, I rise to lay on the table of the House the papers mentioned against his name at serial number 3 in today's revised list of business. Item number 4, Mahesh Sharma ji. Madam, with your permission, on behalf of my colleague Srimati Nirmala Sitharaman, I rise to lay on the table of the House the papers mentioned against her name at serial number 4 in today's revised list of business. Item number 5, Dr. Mahesh. Madam, with your permission, I rise to lay on the table of the House the papers mentioned against my name at serial number 5 in today's revised list of business. Item number 6, Shri Haribhai Chaudhary. मैडम, आपकी अनुमति से मैं आज की कार्यसूची में क्रम संख्या 6 पर मेरे नाम के सामने उल्लेखित कागजात को सदन के पटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 7, श्री उपेंद्र कुशवाहा जी। मैडम, आज की कार्यसूची में क्रम संख्या 7 पर अपने नाम के सामने उल्लिखित दस्तावेज सदन पटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 8, श्री विष्णुदेव साय जी। मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची क्रम संख्या 8 पर मेरे नाम पर उल्लिखित कागजात लोकसभा के पटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 9, श्री उपेंद्र कुशवाहा जी। मैडम, आज की कार्यसूची में क्रम संख्या 7 पर मेरे सहयोगी डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे के नाम के सामने उल्लिखित दस्तावेज सदन के पटल पर रखता हूं। सेक्रेटरी जनरल। Madam Speaker, I have to report a message from Rajya Sabha regarding Indian Institutes of Information Technology Public-Private Partnership Bill 2017. रिपोर्ट ऑफ स्टैंडिंग कमेटी, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आज की कार्यसूची में मेरे नाम के समक्ष यथा सूचीबद्ध ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के 28वें प्रतिवेदन की एक प्रति सदन पर प्रस्तुत करता हूं। आइटम नंबर 12, श्री अनंत कुमार। आदरणीय महोदय, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव पेश करता हूं कि यह सभा 28 जुलाई 2017 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के 45वें प्रतिवेदन से सहमत है। That the House do agree with the 45th report of the Business Advisory Committee presented to the House on 28 July 2017. Those in favor may say aye. Those against may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The report is adopted. Now, bill to be introduced, Sri Arun Jaitley ji. Madam, I move for leave to introduce a bill to further amend the Punjab Municipal Corporation Extension to Chandigarh Act 1994. The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor may say aye. Those against may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The leave is granted. Madam, I introduce the bill. Statement regarding ordinance. Madam, I seek leave to lay on the table an explanatory statement in Hindi and English version showing reasons for immediate legislation and promulgation of the Punjab Municipal Corporation Law Extension to Chandigarh Ordinance 2017. Bill to be introduced, Arun Jaitley ji. Madam, I seek to move for leave to introduce a bill to introduce the extension of the Central Goods and Services Tax 2017 to the state of Jammu and Kashmir. That the leave be granted to introduce the bill. Those in favor may say aye. Those against may say no. I think the ayes have it. Ayes have it. Leave is granted. Minister may introduce the bill. Then regarding ordinance also. Madam, I seek leave to lay on the table an explanatory statement in Hindi and English showing the reasons for immediate legislation by promulgation of the Central Goods and Services Tax extension to Jammu and Kashmir Ordinance 2017. Yes. Item number 17, introduce the bill. Madam, I seek leave to move to introduce a bill to provide for extension of the Integrated Goods and Services Tax 2017 to the state of Jammu and Kashmir. That leave be granted to introduce the bill. Those in favor may say aye. Those against may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The leave is granted. The minister may now. Madam, I introduce the bill. Ordinance. Madam, I seek leave to lay on the table an explanatory statement in Hindi and English version showing reasons for immediate legislation by promulgation of the Integrated Goods and Services Tax extension to Jammu and Kashmir Ordinance 2017. Item number 19, Rao Indrajit Singh to introduce the bill. Madam, I rise to seek leave
for leave to introduce a bill further to amend the Public Premises Eviction of Unauthorized Occupants Act 1971. The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor may say aye. Those against may say no. I think the ayes have it. The leave is granted. The minister may now introduce the bill. Madam, I introduce the bill. Yes. Members, the matters under Rule 377, there will be no question hour just now. Sancham ko question hour le lenge. Members, the matters under Rule 377 shall be laid on the table of the House. Members who have been permitted to raise the matters under Rule 377 today and are desirous of laying them personally hand over text of the matter at the table of the House within 20 minutes. Only those matters shall be treated as laid for which text matter has been received in stipulated time. The rest will be treated as lapsed. अब हम ले लेंगे आइटम नंबर 25 जो तय हुआ था 12 बजे 193. सो मल्लिकार्जुन खड़गे जी. मैडम, इससे पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहता था कि गुजरात में जो घटना घट रही है, अब आइटम नंबर लेंगे, ऐसा नहीं होता. ठीक 193 के बारे में चर्चा करें. आप सब बैठिए. आप विषय बोल ही रहे हो ना, आपसे मैं शुरू करूँ. अरे आप बैठिए ना. मैंने जब उनका नाम लिया है, आपको आइटम ये 193 आपने मांग की थी, मैंने 193 शुरू किया है. नहीं, उसके लिए तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ. धन्यवाद. और आपका आदेश स्वीकार करता हूँ. वो बात करने के लिए तैयार हूँ. हाँ, लेकिन वो एक समस्या, ये लोकतंत्र में अगर ऐसा एमएलए का खरीद फरोख्त होते चला, एमएलसी का ये बड़ा ये ऑपरेशन कमल जो हो रहा है, इसको स्टॉप कीजिए. मैं नहीं होती. आप आज का जो विषय है अपना, आपने सबने आवश्यकता से बोला था कि एट्रॉसिटीज, मॉब वायलेंस, आप इसी पे बात करें. ठीक है मैडम, ठीक है. आप जैसा बोलेंगे आपके आदेश पे मैं चलूंगा. ये भी एक डेमोक्रेसी का लिंचिंग है. सब होते कई सारे लिंचिंग होती. भाई मैं एक ही पार्टी में हूँ 50 साल से. नहीं, वो आपको छोड़े सो. मैडम स्पीकर, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे रूल 193 पे बात करने के लिए और खासकर मॉब लिंचिंग इशू पर अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए जो समय दिया, उसके लिए फिर एक बार आपका आभारी हूँ. इस देश में किसी की भी हत्या हो या किसी का भी मर्डर हो या किसी का भी खून हो या मॉब लिंचिंग हो, वो खंडनीय है. चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे ईसाई हो या किसी कम्युनिटी के हो, चाहे दलित हो, चाहे महिला हो. किसी भी व्यक्ति को मॉब लिंचिंग करना या अपने हाथ में लेना कानून और उनको मारना एक खंडनीय है. इसीलिए मैं कंडेम करता हूं. किसी व्यक्ति को भी ऐसी जो स्थिति आती है या ऐसा जो वातावरण तैयार करके मारा जाता है, उसका मैं खंडन करता हूं. पूरा सदन भी खंडन करेगा. अब आज पूरे देश में भय और आतंक का माहौल है. उसमें पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की छवि खराब हो रही है और खास करके कई शहरों में
भीड़ द्वारा हिंसा और हत्याओं का सिलसिला थम नहीं रहा है। कानून की व्यवस्था हर जगह बिगड़ती जा रही है। ये इसीलिए बिगड़ती जा रही है कि जो कोई व्यक्ति मारा जा रहा है, क्या इन लोगों के धर्म के नाम पे, गोहत्या के नाम पे जिस किसी को भी हर जगह एक उसकी हत्या हो रही है, तो इसीलिए लोग बहुत चिंतित हैं कि इस देश में डेमोक्रेसी है या नहीं, क्या इस देश में कानून की व्यवस्था है या नहीं, क्या इस देश में सरकार है या नहीं। ये समस्या आज लोगों के सामने है। और खास करके मैं आपको कहूंगा कि गोहत्या के लिए जो कानून बना है, जो संविधान में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में जो आर्टिकल है, उसके लिए तो सभी का गौरव है, क्योंकि उस आर्टिकल के मुताबिक ही सारे राज्य में कानून बनते हैं। और बहुत से राज्यों में ये कानून बन चुके हैं, लेकिन चंद स्टेट में ऐसे कानून नहीं हैं। फिर भी ऐसी घटनाएं क्यों हो रही है, इसके पीछे कौन है, इसका तो खुलासा होना चाहिए। इसीलिए मेरा एक आपसे विनती है कि ये जो घटनाएं घट रहे हैं, इसके पीछे केंद्र सरकार जो खास करके चंद संगठन को जो बढ़ावा दे रही है और प्रोत्साहित कर रही है, और इसमें मैं ये नहीं कहूंगा कि वो डायरेक्टली कर रहे हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से, चाहे वो वीएचपी हो, बजरंग दल हो, गोरक्षक हो, ये सारे संस्थाएं बीजेपी से जुड़े हुए हैं। और खास करके इसको बीजेपी के एमएलएस, एमपीज, ये लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं। और उनके बयान भी मैं आपके सामने पढ़ के बताऊंगा कि ऐसी चीजें जो मोदी जी के नए भारत में कट्टरपंथी विचारधारा के लोग निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार रहे हैं। इन घटनाओं से देश प्रेमी और मानवतावादी जनता को बड़ा धक्का लगा है। संविधान आर्टिकल 21 इस देश के हर नागरिक को जीने का अधिकार, मतलब राइट टू लाइफ देता है, पर आज देश में एनडीए सरकार के कदम पड़े हैं, तब से ऐसे कम्युनल और क्रिमिनल इंसिडेंट्स इस देश में हो रहे हैं। और इसको प्रोत्साहन डायरेक्टली इनडायरेक्टली गवर्नमेंट के तरफ से हो रहा, ये मैं जरूर कहूंगा, क्योंकि बहुत से वक्त ऐसी जब घटनाएं घटती है तो उसके लिए प्रधानमंत्री जी अपनी बात नहीं कहते। अपनी मन की बात जब कहते हैं, वो सिर्फ अरे हम तो रोज रहते हैं, तुम्हारे प्रधानमंत्री अमावस को, पूर्णिमा को एक दिन आते हैं, सर दिखाते हैं, चले जाते हैं। प्रधानमंत्री तो रोज आना चाहिए। ये सदन उनके लिए बना हुआ है, इस सदन के लीडर है वो, ये कोई उपकार नहीं हमारे ऊपर। तो इसीलिए मैडम स्पीकर, मैं ये देश जो है, हमको आजादी मिल के 70 साल हुए। इस 70 साल में ऐसी घटनाएं कभी नहीं हुई। बहुत से घटनाएं जो होती है, भीड़ के तरफ से मारा जाता है, दूसरे इश्यू पे, कभी पॉलिटिकल इश्यू पे होता है या कहीं दूसरे इश्यू पे होता है, लेकिन ये जो धर्म के नाम पर, गाय के नाम पर, गोरक्षा के नाम पर ऐसी घटना कभी भी इस देश में नहीं हुए। ये देश तो जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं हमेशा, गौतम बुद्ध, महावीर, गुरु नानक, गांधी जी
और सूफी संतों का देश है, यहाँ शांति और समृद्धि से रहना है, वो हमेशा संदेश देते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, जो जिस देश में हमेशा भाईचारे के लिए मशहूर है, भाईचारे के लिए आज तक गांधी जी का संदेश लेके हम हर दुनिया में गए हैं और हमारा आदर भी होता है, और गांधी जी का नाम जब लेते हैं तो सभी ये कहते हैं कि उनसे सीखने की बात कहते हैं। लेकिन आज हम गौतम बुद्ध को भूल गए, महावीर को भूल गए, गुरु नानक को भूल गए, बसवेश्वर को भूल गए, नारायण गुरु को भूल गए। ये सब लोगों को भूल के कानून अपने हाथ में लेकर आज माइनॉरिटी को, दलित को, महिलाओं को हत्या कर रहे हैं। और इन हत्या के पीछे मैं खास करके ये कहूंगा और जोर से कहूंगा कि इसमें वीएचपी का, बजरंग दल का, इन सब का हाथ है। इसीलिए उनको रोकने के लिए प्रधानमंत्री क्या करते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री क्या करने वाले हैं, और जाति और धर्म के नाम पे हम ये नहीं करना चाहिए। और आज ये हो रहा है हमारे देश में, हिंदू को मार रहा है और हिंदू मुसलमान को मार रहा है, मुसलमान को मार रहा है। जम्मू एंड कश्मीर में ऐसा घटना हुआ। तो ये जो घटनाएं क्यों हो रहे हैं, इसके पीछे क्या है कि आपकी आइडियोलॉजी, आपकी फिलॉसफी, आप जिस फिलॉसफी को अनुष्ठान करना चाहते हैं, इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, उसको लाने के लिए ये सारी चीजें हो रही हैं। और एक तरफ तो आप कहते हैं कि जो भी ऐसी काम करेगा, मॉब लिंचिंग करेगा, गोरक्षक कोई भी होगा, उसके ऊपर एक्शन लेंगे, कड़ी से कड़ी सजा देंगे। वो गुंडे लोग हैं, आपने कहा, और वो गुंडे लोगों को हम कभी सपोर्ट नहीं करते, वो हमारे से जुड़े नहीं हैं। लेकिन क्या आपने एक्शन लिया? किस किस के ऊपर आपने एफआईआर डाला? कितने लोग जेल में हैं? कितने लोगों को आपने आज इंक्वायरी करके हैंग किया, इंप्रिजनमेंट किया? मैं पूछना चाहता हूं। दूसरी चीज, ये एक घटना नहीं है। देखिए, मेरे पास बहुत बड़ा लिस्ट है। मैडम, आपके इजाजत से, परमिशन से मैं चंद घटनाएं पढ़ता हूं, पूरे 50 नहीं पढ़ने जाता। जो घटनाएं यहां पर सिर्फ 2017 के पढ़ता हूं। अलवर में गोरक्षकों को, दूध का व्यापार करने वाले पहलू खान और उसके 4 साथियों को मारा। पहलू खान की 2 दिन बाद मौत हो गई। 19/4/2017 केरला में पुलिस ने 14 बीजेपी और आरएसएस के कार्यकर्ता के खिलाफ एक घर पर हमला करने वाले आरोपी को दर्ज किया। 24/4/2017 को गोरक्षकों के भीड़ ने जम्मू कश्मीर के रिहायशी इलाके में एक के परिवार के 5 लोगों को घायल करके दिया, जिसमें 2 महिलाएं शामिल है। परिवार पर लोहे के रॉड से हमला किया गया। 2017 एक भीड़ ने गोहत्या की अफवाह में आके पुलिस पर पत्थरबाजी की। गुस्साई हुई भीड़ ने 2 मुस्लिम आदमियों को गाय चोरी करने का शक होने पे उन्हें भगा कर मारा। जब तक उन लोगों के आदमियों को अस्पताल लाया गया, तब तक उनकी मौत हो चुकी। वो भी करेंगे भाई। गोरक्षा के अपनी गायों को लेकर जा रहे थे 2 किसान, जो उन्हें शक था कि किसान उन गायों को स्लॉटर के लिए ले जा रहे हैं, तो वो पालने के लिए लेके जा रहे थे। उन पर भी हमला किया, उनको भी मार दिया। 12/5/2017 गोरक्षकों के एक समूह ने 5 युवकों को बुरी तरह मारा। उन्हें शक था कि उन 5 लोगों के एक भैंस को स्लॉटर किया था, लेकिन उसको गाय समझकर उन लोगों को मारा गया। 14/5/2017 में गोरक्षक के एक समूह ने एक युवक को बुरी तरह मारकर घायल कर दिया। गोरक्षकों को शक था कि ये युवक ने एक गाय को घायल किया था।
ये उज्जैन मध्य प्रदेश में हुआ। उड़ीसा 25/5/2017 को गोरक्षकों के ग्रुप ने भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन के मैनेजर सहित 4 लोगों पर हमला कर घायल कर दिया। उनको शक था कि वे जानवरों की ट्रैफिकिंग से जुड़े हुए थे। 2/6/2017 को सूरज IIT मद्रास के स्कॉलर को पीटा गया। उसकी दाहिनी आंख बुरी तरह घायल हो गई। उल्टे उसके खिलाफ 2 धाराओं में केस दाखिल किया गया। 2/12/6/2017 राजस्थान में तमिलनाडु सरकार के एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के कर्मचारियों पर 2 अलर्ट डॉक्यूमेंट के साथ नियम बताओ 352 352 में है ए मेंबर while speaking shall not refer to any matter of fact on which a judicial decision is pending। ये जितने चीजों की बात कर रहे हैं वो सब कोर्ट में केस चल रहा है, जुडिशियल पेंडिंग है, और ये बार बार पूरे देश भर के मामले को उठा रहे हैं। इट इज डेरोगेटरी, इसीलिए ये बात नहीं उठा सकते। जितना इन्होंने रेफरेंस दिया है वो सब जुडिशरी में है, वो सब कोर्ट फैसला करेगा उसका। ये कैसे बताएंगे? ये झूठ पर झूठ लगातार बोले जा रहे हैं। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि इनको कहें कि विषय पर बोलें और जो भी जुडिशियल पेंडिंग है उसको बात नहीं करेंगे। मैडम स्पीकर, कोर्ट के जजमेंट को हो या कोर्ट के वहां पर जो केस पेंडिंग है उसके बारे में मैं डिटेल नहीं बता रहा हूं। मैं सिर्फ इंसिडेंट के नाम बता रहा हूं, क्यों हुआ, कैसा हुआ, कौन करे, ये मैं तारीख के साथ मैं आपके सामने रखा हूं। तो इसीलिए इसको सब जुडिस का सवाल ही नहीं। आप अच्छे देखो, आप गलत केस ले लिए हैं। झारखंड में करीब 100 लोगों की भीड़ ने एक आदमी को बुरी तरह मारा और उसके घर में आग लगा दी, क्योंकि उसके घर के सामने एक मरी हुई गाय मिली थी। आप देखिए, झारखंड के रामगढ़ जिले में अलीमुद्दीन नाम के शख्स की हत्या कर दी गई। उस पर शक था कि वो अपनी गाड़ी में बीफ लेकर जा रहा था। ये घटना उसी दिन हुई जिस दिन मोदी जी ने लिंचिंग के खिलाफ एक बहुत बड़ा बयान दिया था और उन्होंने ये कहा था ऐसे लोगों के ऊपर एक्शन लेंगे। क्या एक्शन आपने लिया? हम पूछते हैं इस सदन के लीडर से, प्राइम मिनिस्टर से, क्या एक्शन आपने लिया? आप बात कर रहे हैं, आप हमेशा कहते हैं एक, करते हो दूसरा, तो आप एक्शन नहीं लेते। और मैं 2016 का पढ़ने नहीं जाता, इतने बड़े बड़े हैं। झारखंड और मध्य प्रदेश तो ऐसा हुआ है, ये लिंचिंग सेंटर हुआ है, मॉब लिंचिंग सेंटर, और हर जगह। और दूसरी चीज, झारखंड के जाबर गांव में 2 जो कैटल व्यापारियों के मोहम्मद मजलूम और इनायतुल खान के शव पेड़ से लटके मिले। तो जो लोग यानी और ट्रक ड्राइवर बलकार सिंह जो कि हिंदू थे, भैंसों को ले जा रहे ट्रक को रूपनगर कुराली रोड पर रोक दिया गया। ट्रक ड्राइवर बलकार सिंह जो हिंदू थे उनको जमकर पीटा गया। उसके खिलाफ गोवध कानून के तहत मामला दर्ज किया गया। ऐसे इतने घटनाएं हैं, मैं आपको इसका पूरा लिस्ट आपको देता हूं, लेकिन ये जो हर जगह ऐसी चीजें हो रही हैं और इसके पीछे किनका हाथ है? अगर ये करते गए, क्या देश में एकता रहेगी? क्या देश में अखंडता रहेगी? देश में डेमोक्रेसी टिकेगी? क्या इस देश में कानून की व्यवस्था होगी? तो इसीलिए मैं ये लिस्ट पूरा आपको दूंगा और ये मैं खास करके आपको सबमिट करूंगा। और दूसरी चीज, और ये तो
बैठिए बैठिए। और दूसरी चीज, बैठिए, क्या नाम है इनका? बैठिए बैठिए प्लीज, आप सब लोग समझिए, बैठिए। क्या हो रहा है? मैडम स्पीकर, आज एक बात, एक सेकंड, आप सभी सदस्य आज समझिए कि इस, अगर आप जानते हो कि ये गंभीर बात है या कुछ है, हमने इसके डिस्कशन के लिए समय दिया है, 19 से डिस्कशन शुरू हो रहा है। मैं आज मेरी भी परीक्षा कर रही हूँ, मैं किसी को कुछ नहीं बोलूँगी, मैं कोई कंट्रोल नहीं करूँगी। आप सभी जनप्रतिनिधि हो, आप सबको अपने अपने क्षेत्र में जाना है, क्षेत्रों को संभालना है, लोगों को संभालना है। All of you, all of we, I can say we are answerable to everything. और इसलिए मैं किसी को नहीं कंट्रोल, आप अपना कंट्रोल रखो। जब समय आएगा, आपकी बोलने की बारी आएगी, आप भी रिप्लाई दो। मैं यहाँ भी शब्दों एक बात और बोलूँगी, यूं ही पर्सनल नाम लेना अगर मना है तो कृपा करके मत लो, कि नहीं लेना चाहिए। जो यहाँ उपस्थित नहीं रहेंगे अपनी बात बताने के लिए, तो हर कोई अपनी बात अपने लिमिटेशन में कहेगा तो डिस्कशन कुछ हो पाएगा, हम कुछ कर पाएंगे। जी ठीक है मैडम, आपका आदेश मैं मानता हूँ, लेकिन आपके सामने और एक उदाहरण रखूंगा। गुजरात में 12 जुलाई 2016 को सोमनाथ डिस्ट्रिक्ट की एक घटना वायरल हुई थी, जिसमें 4-5 दलित लड़कों की पिटाई हुई थी। उनको गाड़ी में बांधकर रॉड से मारा गया। ये कौन सा न्याय है? इसी जिले में 20 जुलाई 2016 को 7 दलित लड़कों की पिटाई की गई, क्योंकि वे मरी हुई गाय का चमड़ा निकाल रहे थे। इसके बाद 25 सितंबर 2016 को बनासकांठा जिले में एक गर्भवती दलित महिला को पीटा गया, क्योंकि उसने मरी हुई गाय को उठाने से इनकार कर दिया। कहीं दलित की इसलिए पिटाई हो जाती है कि वो मरी हुई गाय का चमड़ा निकाल रहा था, और कहीं दलित की इसलिए पिटाई की जाती है क्योंकि वो मरी हुई गाय को उठाने का इनकार कर देता है। तो ये जो हो रहा है, इसके लिए, और ये भी गुजरात में हो रहा है, और गुजरात में हो रहा है, इसके बारे में क्या एक्शन अब तक हुआ है और इनकी रक्षा क्या किए हैं, ये सारी चीजें आपको मैं बताना चाहता हूं। दूसरी, भरी ट्रेन में 16 साल के जुनैद की मौत। एक और घटना दिल्ली के पास, भरी ट्रेन में 16 साल के जुनैद को इतना मार गया कि उसकी मौत हो गई। वो नाबालिग लड़का ईद की खरीदारी करने के लिए दिल्ली आया था। जुनैद के पास कोई गोमांस नहीं था, पर वो अपने घर को नहीं लौट पाया क्योंकि उसकी मौत वहीं हुई। इस घटना ने पूरे देश को हिला दिया। इस घटना ने दूसरे क्रिमिनल को ये मैसेज गया कि अगर हम कुछ भी किए तो कोई हमको पूछने वाला नहीं है, हम करते जाएंगे। तो आज वो वही हो रहा सिलसिला कि हर आदमी कानून अपने हाथ में लेकर हर जगह लिंचिंग कर रहा है, मॉब मर्डरिंग कर रहा है, और हर जगह ये घटना दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि सरकार इसके बारे में गोरक्षकों के ऊपर कितने केस डाले, कितने गोरक्षकों को आपने अरेस्ट किया है और कौन से केसेस उनको डाले। एक तरफ तो आप डिसोन कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन डिसोन करने के बाद जो कानून अपने हाथ में लिए हैं उनके ऊपर क्या एक्शन हुआ है? आपका कोई एक्शन नहीं है, इसीलिए कोई डर रहा नहीं है। आप मन की बात में तो बोलते हैं और हर जगह भाषण तो देते हैं, लेकिन आप बैठिए। अब आप कुछ मत बोलिए, चर्चा चल रही है ना और शांति से चल रही है। होम मिनिस्टर इज देयर, यू नो, है, बैठे हैं, ऐसा क्या करते हो? बैठिए अब प्लीज। आज कुछ मत बनिए, मैंने सबको फिर भी मैडम, आप बोलिए, उनका कर्तव्य होता है। खड़गे जी, आप भी एक बात सुनो। होम मिनिस्टर इज देयर, आपको मालूम है कि
ऐसा कुछ नहीं है। होम मिनिस्टर को जवाब देना है इन सब बातों का। ही इज देयर, ही इज सिटिंग देयर, ही इज नोटिंग द थिंग। ऐसा नहीं। और एक बात और भी आप समझ लो, आधा घंटा आपका हो गया है। आप प्लीज, आपके महत्वपूर्ण पॉइंट्स रह जाएंगे लिस्ट पढ़ने में, तो प्लीज समझिए बात को। फिर मैं टोकूंगी तो आपको लगेगा। प्लीज, मैं अभी नहीं बोल रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ कि करीब आधा घंटा आपका हो गया। नहीं भाई, मैं इसलिए ये सब आपको बता रहा हूँ कि ऐसी घटनाएं इस देश में हो रही है, तो इसके ऊपर एक्शन नहीं लिया जा रहा है। एक्शन लेने के बजाय वो प्रोत्साहित कर रहे हैं। इसीलिए हमारा कहना है कि ये सरकार खास करके माइनॉरिटी के विरुद्ध, दलितों के खिलाफ, महिलाओं के खिलाफ अपना जो गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। तो इसीलिए मैडम स्पीकर, ये एक ही नहीं, यूपी के सहारनपुर में एक सांसद खुद अपने एसएसपी के घर जाकर उसने परिवार पर हमला किया। उस वक्त एसएसपी का परिवार अकेला था, उसके परिवार के लोग भागकर पीछे काऊ शेड में छिप गए। जब एसएसपी ने इसकी रिपोर्ट को बजाय, सांसद के खिलाफ एक्शन लेने के बजाय एसएसपी को वहां से हटा दिया गया। यानी जो एसएसपी कानूनन काम करता है तो उसको वहां हटा दिया गया, लेकिन जो लोग कानून अपने हाथ में लेकर उन पर, उनके घर पे जाके अटैक करके उनको भगा के जाकर वो जिस जगह गाय बांधते हैं उस जगह वो जाके अपनी रक्षा लिए। तो दूसरा चीज इसीलिए चीफ मिनिस्टर, अरे आप सुनिए, आप क्यों, आप बोलते जाइए ना, मैंने बोला। यस, यू गो ऑन प्लीज। अरे आप किसी का नाम नहीं लिया, एक एमपी बोला मैं। प्लीज पानी पीने दो, पानी। राजस्थान में पहलू खान जो अपनी रोजी रोटी डायरी फार्मिंग कमाता था, उसके खिलाफ भी, उसके पास डॉक्यूमेंट रहते हुए भी उनको आपने मार दिया। लेकिन चीफ मिनिस्टर क्या कहते हैं राजस्थान के, उन्होंने तो कंडोलेंस तो जाहिर किया, लेकिन डिमाइस विदाउट मेंशनिंग द फैक्ट दैट ही हैड बीन मर्डर्ड, उनका खून हुआ, ये वो नहीं कहे, लेकिन उसके बारे में अपनी बात को उन्होंने छुपी साधी। दूसरी चीज, और बीजेपी लॉ मेकर, उन्होंने ये कहा कि इसके बारे में नो रिग्रेट ओवर द किलिंग बिकॉज खान वाज ए काउ स्मगलर। तो ये लॉ मेकर ने, एक लॉ मेकर ये कहता है कि नो रिग्रेट ओवर द किलिंग बिकॉज खान वाज ए काउ स्मगलर। तो इसका मतलब क्या? तो ऐसी चीजें, ऐसी घटनाएं गुजरात, झारखंड, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, ऊना, ये हर जगह जो जहां पर बीजेपी शासित तो ये लोग जो है, उस जगह ही ये चीजें हो रही हैं, और इसको कंट्रोल करने का वो कोई प्रयत्न नहीं कर रहे। और उसी के बाद धनबाद में मजलूम अंसारी और इनायतुल्ला भेड़, बकरियां, बैल आदि जैसे 25-30 जानवर लेकर जा रहे थे। गो रक्षकों ने उनको पकड़ा, लाठियों से जिस तरह मारा, और उसके बाद उनको बांधकर पेड़ से नंगा लटका दिया। ऐसी घटनाएं तो अंग्रेजों के समय में हुआ करती थी, लेकिन आज पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में ऐसी घटनाएं हो रही है। ये शर्म की बात है। इस देश में संविधान से ऊपर कोई नहीं है। और मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, कोई भी कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। अगर कोई लेता है तो शिक्षा जरूर उसको मिलना चाहिए। और ज्यादातर ये जो बयान है सबको मालूम है, लेकिन सरकार जो अपनी
इसमें नाकामियां भी दिखा रही है। और खास करके मैं पूछता हूं, क्योंकि बार बार उठ के ये लोग बोलते हैं, एक घटना केरला में हुई, केरला में एक घटना हुई तो वहां पर एक वर्कर का मर्डर हुआ। वहां के गवर्नर, होम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर को बुलाते हैं, नहीं बुला के इंक्वायरी करते हैं, लेकिन यहाँ मॉब लिंचिंग होता है, किसी को भी नहीं बुलाते। क्यों नहीं बुलाते? आप एक तरफ अपने कोई लोग हैं तो यहाँ पर होम मिनिस्टर बुलाते हैं, गवर्नर बुलाते हैं, डीजी को बुलाते हैं, अब इतनी घटनाएं हुए हैं। मैं पूछता हूँ, कितने गवर्नर, कितने होम मिनिस्टर आप बुलाए हैं? आगे बोलिए। मैडम स्पीकर, ये तो भेदभाव है। समाप्त हो रहा है। नहीं, गवर्नर मैडम ये तो भेदभाव है, तो इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसी भेदभाव नहीं होना चाहिए। और ये जो घटना हो रहे हैं, ये सोची समझी घटनाएं हैं। और दूसरी चीज, नाउ कंप्लीट 25 मिनट से ज्यादा इतना है ही नहीं समय पार्टी। नहीं, ये मैडम बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, इसीलिए नहीं मैं ज्यादा, देखिए, अरे बैठिए ना, पढ़ के नहीं, प्लीज बैठिए ना, आपको सुना रहा हूँ क्योंकि आप नहीं सुने। बैठिए सब लोग। तो मैडम स्पीकर, अब मैं ज्यादा आपका वक्त नहीं लेता हूँ, सिर्फ एक आधा घंटा लूंगा। नहीं है ना, मैं क्या करूँ? आधा घंटा नहीं, आई एम सॉरी, कुछ ना कुछ तो समय से जाना पड़ेगा। ठीक है मैडम। मलिक खड़गे जी, आप समझिए, अगर 2 घंटे इसके लिए आवंटित किए गए हैं, आप सुनिए तो सही, फिर भी उस हिसाब से तो आपको 10 ही मिनट पार्टी को, फिर भी मैं नहीं टोक रही हूँ, फिर भी मैं नहीं टोक रही हूँ। आधे घंटे से ज्यादा आपका समय हो गया है। नहीं, मैं आपसे कंक्लूड, नहीं तो अगर दूसरा व्यक्ति नहीं बोल पाएगा आपकी पार्टी। ये सुनिए, इम्पोर्टेंट है मेरे लिए नहीं, तो कुछ मैं आपके नोटिस को लाना चाहता हूँ। इसी सेंट्रल हॉल में पूर्व राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी अपने भाषण दिए, उसमें उन्होंने ये कहा कि हालात की गंभीरता को देखते हुए राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अपनी संवेदना को रखा और कहा कि भीड़ द्वारा लोगों को जान से मारने की घटनाओं पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। उनका ये बयान गोरक्षा के नाम पर देश भर में होने वाली हिंसा को लेकर था। राष्ट्रपति जी ने सरकार को अपने शब्दों पर काम करने की सलाह दी। भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने विदाई गलत मत करो। आई विल हैव टू सी कि भीड़ द्वारा आई एम कोटिंग, अगर है तो रहूंगी, रख दूंगी। क्या है? आई एम नॉट सेइंग नो। भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने विदाई समारोह में कहा कि हम भारत के लोगों के ने सभी नागरिकों के बीच बंधुत्व, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता को बढ़ावा देने का वचन दिया। ये केवल प्रशासन का एक कानूनी दस्तावेज नहीं है, बल्कि देश के सामाजिक आर्थिक परिवर्तन की घोषणा पत्र भी है। तो ये चीजें आज अगर इसको कंटिन्यूटी नहीं रखे, प्रधानमंत्री जी इसमें जाए